Hello students, let us start the first lesson of Hornbill today, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. The author is Khushwant Singh. Now, Khushwant Singh was a very famous writer और इनके अभी recently around 4-5 years back he died, but he was very active till his last day. He was a very active writer till his last day. And इनके columns आते थे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, and people used to look forward to reading his columns. They were so interesting, so witty, and he was a master of intelligent humor. So let us read the lesson now. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब इसमें first stanza में the author is describing his grandmother. वो कह रहे हैं कि मेरी grandmother was an old woman और पिछले 20 साल से जब से मैं उनको देख रहा हूँ she had been old and wrinkled, मतलब वो old बूढ़ी थी और उनके फेस पर wrinkles थे, झुर्रियां थी. और वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो किसी जमाने में बहुत सुंदर हुआ करती थी और यंग हुआ करती थी, लेकिन पोएट ये बिलीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने उनको हमेशा बूढ़ा ही देखा है. और उनके ग्रैंडफादर की पिक्चर उनके एक रूम में लगी है वॉल पर, और वो भी एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है उन्होंने, और बड़ी सी वाइट बियर्ड है उनकी, लंबी सी दाढ़ी है वाइट, और वो एटलीस्ट 100 साल के लगते हैं. तो वो ऐसे लगते हैं वो दादा जो सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं उनके. वो कभी भी वो ऐसा नहीं लगते कि उनकी कभी वाइफ होगी या बच्चे होंगे. वो सिर्फ इतने बूढ़े लगते हैं जो हमेशा जिनके पोता पोती ही हो सकते हैं. और ऑथर को ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ग्रैंडमदर जो है वो कभी यंग और प्रिटी रही हैं. और वो ग्रैंडमदर जब बात किया करती थी अपने बचपन की कि मैं जो गेम्स खेलती थी, तो वो ऑथर को बड़ी अजीब लगती थी क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये लेडी जो इतनी ओल्ड हैं वो कभी गेम्स भी खेल सकती हैं और कभी इनका बचपन वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा. तो वो इस तरह से सुनते थे स्टोरीज जैसे वो कोई संत महात्माओं की कहानियां सुना रही हैं, वो इसी तरह से सुन लिया करते थे. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain that she had always been as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. तो वो बिल्कुल भी उनको विश्वास नहीं है ऑथर को कि वो कभी यंग थी. वो ऐसी की ऐसी ही थी हमेशा से. She could never have been, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, she could never have been pretty, but she was always beautiful. ये बहुत ही प्यारा थॉट है ऑथर का. वो कह रहे हैं कि वो सुंदर कभी नहीं रही होंगी, लेकिन वो बहुत ही प्यारी सोल हैं.
शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो उनकी सोल के बारे में बात कर रहे हैं वो, उनकी नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही प्यारी हैं, हमेशा से प्यारी रही होंगी, चाहे वो फिजिकली सुंदर ना रही हों, लेकिन वो बहुत ही प्यारी है। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब वो जिस तरह से बहुत बूढ़े लोग चलते हैं थोड़ा सा लंगड़ा कर, और वो चला करती थी और हमेशा वाइट ही कपड़े पहना करती थी वो, और एक हाथ उनका कमर पर होता था उन अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, उनकी पीठ झुकी हुई थी, स्टूप जो है वो उसको कहते हैं, झुके हुई कमर को। और दूसरे हाथ में उनके हमेशा एक रुद्राक्ष की माला हुआ करती थी, जिसे वो जपती रहती थी हमेशा। जैसे बड़े लोग बूढ़े लोग माला जपते हैं, रोजरी इज रुद्राक्ष, तो माला जपती रहती थी वो हमेशा ही। हर सिल्वर लॉक्स, अब उनके ये लॉक्स जो है, लॉक्स मीन्स बाल, उनके बाल सिल्वर से कंपैरिजन कर रहे हैं ऑथर, क्योंकि उनके बाल बहुत ही एब्सोल्युटली वाइट और शाइनी थे, तो वो सिल्वर चांदी की तरह चमकते थे उनके बाल। दे वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके बाल जो थे थोड़े बिखरे रहते थे और झुर्रियों वाले फेस पर, और उनके लिप्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली एक प्रेयर बोलते रहते थे। दैट प्रेयर वाज इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब किसी को सुनाई नहीं देती थी, वो मन में ही अपने धीरे धीरे प्रेयर बोलती रहती थी। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो उनको देखकर बिल्कुल एक शांति का एहसास होता था, प्योर वाइट सिरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। बहुत ही प्यारे वर्ड्स ऑथर ने यूज किए हैं उनके लिए। तो उनको देखकर एकदम से पीसफुल थॉट्स आते थे, और कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन। तो उनसे मिलकर, उनको देखकर, उनको सुनकर बहुत ही सेटिस्फैक्शन होती थी सबको। तो शी वाज अ वेरी नोबल सोल। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अब वो अब रिलेशनशिप बता रहे हैं अपने ग्रैंड मदर के साथ कि दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वो हमेशा साथ रहते थे। क्यों साथ थे? ऑथर के पेरेंट्स जो थे वो सिटी में रहने चले गए थे जॉब की वजह से, और ऑथर को ग्रैंड मदर के पास ही विलेज में छोड़ गए थे। अब ग्रैंड मदर ही पूरा टाइम उनकी टेक केयर करती थी, वो उनको सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और तैयार करते करते जब नहलाती थी उसको, तो वो कंटिन्यूअसली एक प्रेयर गाती थी, एक मोनोटोनस वॉइस में, डेली एक ही जैसी प्रेयर एक ही जैसी वॉइस में गाती थी। और वो इस होप में गाती थी कि शायद ऑथर जो बच्चा था उसको याद हो जाएगी प्रेयर, लेकिन ऑथर ने कभी कोशिश नहीं करी उस प्रेयर को याद करने की। उसके बाद वो वुडन स्लेट ले आती थी। पहले जमाने में, पुराने जमाने में वुडन स्लेट हुआ करती थी, नोटबुक्स वगैरह नहीं होती थी, तो वो स्लेट पर रोज का काम किया जाता था,
फिर अगले दिन के लिए उसको दोबारा मिट्टी से साफ कर दिया जाता था और फिर रीयूज किया जाता था उसे। तो वही स्लेट वगैरह लेकर आती थी वो, छोटा सा एक मिट्टी का इंक पॉट होता था और एक पेन होता था, कलम जिसे कहते थे। इस सब का बंडल बनाकर और वो उसको दे देती थी ऑथर को स्कूल ले जाने के लिए। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में वो एक थिक तेल चपाती, तेल मीन्स बासी पुरानी रात की बनी हुई चपाती, एक मोटी सी चपाती खाया करता था विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, मक्खन और चीनी के साथ। और फिर वो स्कूल चले जाते थे और ग्रैंड मदर ही उसको ऑथर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। और साथ ही साथ कुछ बासी रोटियां और ले जाती थी वो रास्ते में विलेज के डॉग्स को फीड करने के लिए, विलेज के डॉग्स को देने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. अब पोइट ऑथर कह रहे हैं कि ग्रैंड मदर जो है वो साथ ही जाया करती थी, क्योंकि उन जो ऑथर का स्कूल था वो टेम्पल के साथ, मंदिर के साथ ही अटैच था। और जब तक ऑथर जो है वो स्कूल में पढ़ते थे तब तक ग्रैंड मदर जो है वो मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स होते हैं ग्रंथ, वो वहां पढ़ती थी। और जब दोनों का काम खत्म हो जाता था तो दोनों इकट्ठे वापस आते थे। और वापस आते समय उनको रास्ते में विलेज के डॉग्स मिलते थे, जो जब ये रोटी डाला करते थे उनको तो आपस में दे यूज टू फाइट विद ईच अदर, कि रोटी खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे डॉग। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है। फर्स्ट स्टेज हमने देखी कि जब विलेज में थे ऑथर और ग्रैंड मदर, दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर और बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप था, हमेशा वो साथ थे, पूरा टाइम वो साथ रहते थे। नेक्स्ट स्टेज अब आ रही है जब ऑथर के पेरेंट्स को घर मिल गया सिटी में, तो उन्होंने ग्रैंड मदर और ऑथर को सिटी में, शहर में बुला लिया। यहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया। किस तरह से टर्निंग पॉइंट आया? हालांकि उनका सिटी में भी रूम शेयर करते थे, ग्रैंड मदर के रूम में ही रहता था ऑथर, सोता था, लेकिन ग्रैंड मदर जो थी वो उसको स्कूल छोड़ने अब नहीं जा सकती थी, क्योंकि स्कूल थोड़ा दूर था और इंग्लिश स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वो ऑथर जो था वो मोटर बस में जाया करता था। तो पहला जो चेंज आया वो ये था कि वो साथ में छोड़ने नहीं जा सकती थी। सेकेंड चेंज जो आया, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। अब गलियों में उनको डॉग्स नहीं मिलते थे, और ग्रैंड मदर को क्योंकि आदत थी एनिमल्स को फीड करने की, तो उन्होंने एक हैबिट डाल ली कि स्पैरोज को, चिड़िया चिड़िया को अपने कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में चिड़िया को रोटी डालनी शुरू कर दी। So that was another change in her habits. अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। This is the first part of the lesson. I will continue the remaining lesson in part 2 of the recording. So I'll send another recording for part 2.